But we have to get and then Srila Prabhupada told him, no, you have not committed any offense. He said, yes, I did. But he said, no, you didn't. So this is the love between Vaishnavas. It is so great. There is only one thing we have to try to copy our spiritual master. And then a great unity that we even can expect now will take place before we know it. This is the one of places. All worship the Prabhupada. Vishvacharya Srila Prabhupada ki. I'd like to welcome Raj, who's a very dear friend and has performed many valuable services to Srila Prabhupada, including is participating in the Kiribati Mahotsava by decorating the Samadhi, feeding the Vaishnavas. So I'd like to request him to speak. Srila Prabhupada ki! Om Jnana-Tirandhasya Jnana-Tirandhasya Jasaturnmilatam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namah. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunamani Prashitapushanari. Hey Krishna Karuna Suna. Not to argue or not to fight, but rather to actually become Krishna conscious. We want to be eternal servant of our Guru Maharaj, Divine List of the Prabhupada. In the process, we also want to know what is the ultimate destination, ultimate goal of Krishna consciousness. I think Swarandas has come like that. We don't come here at this moment to be Guru or to be Jivishri or to be the leader, but actually we came to be the servant. And so I think we focus along that line, and that could be many areas of cooperation and to just prepare Guru Kantos Kanta Kalpasambrasya Vikas or term most parts I have in my heart. But yet, all the audience are wanting me to speak about it. And thinking a good translation is there. Then it is so well, otherwise I am speaking English.
आज ज्ञानेश्वर गोस्वामी महाराज के चारों कमरों में अपनी कोटि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला महाराज मैं अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। First, I offer my millions of obeisances to the Lord Speaker, my spiritual master, Bhakti Keshav Goswami Maharaj, and then I offer my obeisances to my Shiksha Guru, His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Maharaj. आज बड़े आनंद की बात है कि आज विश्व के सभी भागों से अच्छे उनके सेवक लोग यहाँ पर उपस्थित हुए जो भी समय सफल उनकी वाणी का प्रचार करते हैं। आज उनकी विरक्ति थी माने विरक्ति का तात्पर्य ये होता है उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है, जो कुछ आचरण किया है, विशेष रूप से अपने आराधना राधा कृष्ण की सेवा के लिए जो कुछ उत्सर्ग किया है, उन सभी चीजों को आज हम स्मरण करके स्वयं उसमें प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करें। It is a matter of great pleasure that devotees from all over the world are engaged in preaching Bhakti on behalf of Sai Maharaj have assembled here for this Lila Mahotsav, festival of separation. Lila Mahotsav means that on this auspicious day, whatever was dear to him in the service of Radha and Krishna, we remember and we try to fulfill his desires. सबसे पहले किसी व्यक्ति के लिए परिचय की आवश्यकता होती है। साधारण में लोग उसका परिचय ये देते हैं वंश परंपरा से, उसके जन्म से, उसके माता पिता इत्यादि के द्वारा। उन्होंने कौन से संसार में बातें की, कौन से उनके कार्यकलाप हैं, इसके द्वारा उसका परिचय दिया जाता है। किंतु वैष्णव का यह परिचय यथार्थ परिचय है। स्वामी जी केवल संसारिक व्यक्ति नहीं थे, इसलिए हम लोग उनके माता पिता, जन्म स्थान, जन्म और संसारिक जो क्रियाकलाप है उसी के ऊपर हम लोग विचार नहीं करेंगे। हम पारमार्थिक उनके जीवन के संबंध में हम विचार करेंगे। At first, one must think about introduction. Who was he? What did he do? Generally, in the material terms, one is introduced by who he is born to, where he comes from, what are his material activities. But in the matter of Vaishnava's life, his material birth and activities do not matter, but his dharmatic or spiritual activities are the only things that matter. हम लोग सबसे पहले उनके जीवन में देखते हैं कि वे बड़े ही पवित्र दिन में आदत रूप थे। प्रभु ने उनके इस जगत में आविर्भाव होने के लिए, आविर्भूत होने के लिए बहुत ही सोच समझ करके नवोत्सव का दिन रखा।
इसलिए वो नववर्षों के दिन में प्रकट हुए। ये उनकी भावी और भविष्य क्रियाकलापों का एक बहुत ही सुंदर विचार है। The first thing is that he appeared on a very auspicious day. The Lord chose for his pure devotee to appear on auspicious Nandotsav day. That alone signified that he was appearing for some very, very important and great activities. उनके पिताजी गौर मोहन दे बहुत ही धार्मिक विचार थे। उनकी माता जी बहुत धार्मिक विचार की थी। उन्होंने बच्चे का नाम भी अभय चरणार रखा। अभय चरणार माने क्या है? अभय चरणार केवल कृष्ण ही है। उनके चरणों में जाने से ही हम अभय सकते हैं और जगत को भी अभय दे सकते हैं माया से। इसलिए सोच विचार करके परम धार्मिक पिता ने और माता जी का नाम अभय चरणार बिंद अर्थात भगवान के एक बहुत ही अच्छे सेवक हैं जो भी जगत को भी अभय दे सकते हैं। इसलिए उनके मुख से ऐसा ही नामकरण हुआ। इस नाम के नामकरण में भी एक बहुत ही सुंदर विचार है। His parents were very pious, therefore they gave him the name Abhay Charanarvind. Abhay Charanarvind is the name of Krishna because in this world only Krishna can give fearless shelter. So this meant that Swamiji was meant to give fearless shelter to the whole world. So this name giving was also very significant and was also a divine arrangement. और बच्चों को खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने दिए जाते हैं, वो खेलते हैं। किंतु उनके पिताजी ने उनके लिए इसके रुचि के अनुसार में मृदंग, करताल और ठाकुर जी राधा गोविंद की सेवा की को खेलने के लिए दी। इसी से आप समझते हैं कि उद्धव जी ने जिस प्रकार से बचपन से ही कृष्ण के श्री विग्रह से खेलते, नाम कीर्तन करते हुए रोते और उनका जीवन यहीं से आरंभ हुआ, उसी प्रकार से इनका जीवन भी हम देखते हैं कि ठाकुर जी की सेवा के लिए और खेलने में मृदंग, करताल और कीर्तन के साथ में उन्होंने फिर अपनी आरंभ की। तो अपने जीवन का फिर कैसा आरंभ करें, हम उसी के द्वारा हम सोच सकते हैं। Whereas other children play with toys, the Prabhupada was given Radha Krishna deities, Madanga and Kartals to play with. So this also is very significant that throughout his life he was going to be playing Madanga and Kartals and worshiping Radha and Krishna. मैं तो समझता हूँ कि उनके जीवन का सबसे प्रमुख कार्य था जगत गुरु नित्य लीला परमेश्वर विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के चरणों में दीक्षा प्राप्त होना। उनकी जीवन की धारा को उन्होंने एकदम बदल दिया। इसलिए मैं समझता हूँ उनके प्रमुख कार्यों में जीवन के यहीं से वो आरंभ हुआ और प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने भारत के बाहर में विश्व भर में श्री चैतन्य महाप्रभु के आर्थिक और प्रचारित शुद्ध भक्ति की धारा पाश्चात्य देशों में प्रवाहित करने के लिए इनको स्पेशल रूप में चयन किया और कहा कि आप पाश्चात्य भाषा में हमारे विचारों को, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को आप विश्व में सर्वत्र प्रचार करें। इसके लिए उन्होंने अपने बैक हार्मोनिस्ट पत्रिका के लिए उनको चयन किया, उसमें लेख लिखने इत्यादि के लिए कहा। I think the most important event in Swami Maharaj's life was that he met Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. That was the most important event. Immediately Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj selected him to preach the message, his teaching and teaching the Lord Chaitanya in English language to the rest of the world. And he also selected him to write articles in English for his magazine, The Harmonist. एक सच्चा गुरु सदगुरु सत्सत्य को समझता है और सत शिष्य भी सदगुरु के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करता है।
इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको अपने इस मिशन का प्रचार करने के लिए एक योग्य व्यक्ति का सलेक्शन किया। The true spiritual master seeks out the true disciple, and the true disciple seeks out the true spiritual master. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj had sought out Swami Maharaj to spread his mission throughout the world. उस समय तक श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने बंगाल के गांव-गांव में, भारतवर्ष के प्राय सभी शहरों में, गांव में और इंग्लैंड इत्यादि में भी पूज्य पाद महाराज जी को भेजकर पाश्चात्य देशों में भक्ति धारा प्रवाहित करने की चेष्टा की। किंतु प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अप्रकट होने पर गौड़िया मठ का प्रचार, महाप्रभु का प्रचार कुछ प्रचार हो गया और ठीक से प्रचारित नहीं हुआ। At that time, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he opened many branches all over India, practically in every village in Bengal and all the major cities of India, and also he sent one Maharaj to England. In this way, he spread the mission very far and wide. It was going on very enthusiastically during his time, but when he disappeared, the activities of Gaudiya Math became obstructed due to certain reasons, and the preaching practically stopped. इसके बाद में अभय चरणाथ जी, आदर परम आदर अभय चरणाथ जी कलकत्ते को छोड़ करके इलाहाबाद में आए और वहीं पर हमारे गुरु जी से पहले से तो उनसे परिचय था ही, किंतु हमारे गुरु जी भी गौड़िया मठ से निकलकर और प्रथम रूप में कोई सोसाइटी बनाने की सोच रहे थे। उस समय इलाहाबाद में दोनों में भेंट हुई, दोनों में पहले से ही बहुत मित्रता थी। कुछ दिनों के बाद में हमारे गुरु जी ने बंगला और हिंदी में गौड़िया पत्रिका और भागवत पत्रिका आरंभ की। उसमें स्वामी जी को अपना एडिटर इंचार्ज बनाया। उन्होंने बड़ी बोल्डली से उसमें प्रबंध लिखे। उन्होंने सुधाभक्ति के प्रचार के लिए विशेष करके ऐसे प्रबंध लिखे जो सबको चौंका देने वाला था। विशेष करके जब उन्होंने मोदी मिशन के ऊपर में उन्होंने आर्टिकल लिखा, उस समय चारों तरफ में हड़कंप मच गई। मोदी मिशन मंच रामकृष्ण मिशन के विचार के लिए लिखा कि मांस खाने वाले लोग, मुर्गी का मांस खाने वाले लोग ये धार्मिक कैसे हो सकते हैं। Prabhupada and Swami Pragyan Keshav Maharaj, they met in Allahabad, the Prabhupada center of Allahabad, and they were very good friends from the very beginning, very intimate friends. Swami Pragyan Keshav Maharaj was also considering to, because Gaudiya Math was full of lot of trouble, so he was starting his own institution. So at that time he appointed Abhay Babu to be in charge of his Bengali and Hindi publications. And at that time Abhay Babu was writing articles for all these publications. And he used to write, in order to establish pure devotional service, he would write startling articles. Especially one article called the Murgi Mission, article about Murgi means chicken. So chicken mission, because Ramakrishna Mission they allow their followers to eat chicken and meat. So he challenged them that how can meat eaters be called religious? वो इतने साहसी थे कि उस समय के हमारे माननीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, वो वर्ल्ड भर में विख्यात थे विद्वान आदमी के रूप में और सब लोग उनको आदर करते थे। किंतु गीता के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कृष्ण के लिए शरीर और शरीर का भेद बताया कि कृष्ण वो शरीर नहीं थे,
बल्कि शरीर के अंदर में शरीर थे। और बहुत सी गलत भावनाओं को उन्होंने लिखा। जगत उनके बातों को मानता था उस समय राजा कृष्ण, किंतु इन्होंने हमारे गौड़ीय पत्रिका और भागवत पत्रिका में इसका स्ट्रॉन्गली इसका सुधार किया कि कभी नहीं ऐसा हो सकता है। उन्होंने कितनी प्रतियां छपवाकर और राष्ट्रपति को और वहाँ के लोकसभा में उन्होंने प्रेरित किया और कहा कि आप आमने सामने आकर के या फिर आप इसका जो मैं लिखता हूँ उसका आप बात करें। और उन्होंने गीता तो उस चीज का उन्होंने बड़ी सुंदरता के साथ में युक्तिपूर्वक उन्होंने लिखा कि भगवान में शरीर और शरीर का भेद नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत ही गलत काम करते हैं। विशेष करके उन्होंने ये बताया कि कृष्ण में और उनके शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। मायावाद और अद्वैतवाद एक नहीं है। शंकराचार्य मायावादी थे, ब्रह्मवादी नहीं थे। श्रीमद् भागवत ने या उपनिषदों में ब्रह्मवाद को स्वीकार किया गया है। वो भक्ति का उतना विरोधी नहीं है विरोधी, किंतु उतना विरोधी नहीं। चारों संत ये थे, सनत सनंदन सनत कुमार और सुखदेव गोस्वामी के पहले लोग ब्रह्मवादी थे, किंतु अद्वैतवादी और मायावादी नहीं थे। इसलिए वो भक्ति में तर्ण हो गए, किंतु शंकराचार्य जी कभी मेरी भक्ति में नहीं। At that time, Dr. Radhakrishna was president of India, and he was well known all over the world. He wrote a book on Bhagavad Gita. He was respected. Everybody heard him. And still, Prabhupada read his book, Bhagavad Gita, and that Bhagavad Gita he mentioned that Krishna's body and Krishna's soul are different. So we should worship Krishna's soul within the body of Krishna, but not the body. So Prabhupada wrote a very strong article refuting that in Gaudiya Patrika, in Bhagavad Patrika, that was published by the mission, and sent hundreds of copies to Dr. Radhakrishna himself and all the members of Parliament. And in that book, he challenged him that please come and debate with me about this issue. Otherwise, what you are saying is all bogus and wrong. Prabhupada was always ready to argue with Mayavadis. Narayan Maharaj says that Advaitavad and Mayavad are two different things. Advaitavad, Brahmavadis are a little better than Mayavadis. Brahmavadis do not directly refute the personality of Godhead, but Mayavadis are very offensive. Sanat Kumar and Sukadeva Goswami, they were Brahmavadis, but by good association they became devotees. But Shankaracharya, who propounded Mayavad, could not be made devotee. हमने सुना है कि दक्षिण देश में साउथ इंडिया में शंकराचार्य के बहुत ही गढ़ हैं। उनका प्रचार कहाँ है? किंतु इन्होंने जाकर के स्वामी जी ने दक्षिण भारत में जाकर के उन लोगों को अद्वैतवादियों को और मायावादियों को चैलेंज किया था वहाँ पर कि मायावाद भक्ति का विरोधी है, मुक्ति नाम की वैसी कोई चीज नहीं, और ये मुक्ति भी है तो भक्ति के लिए विरोधी है। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। हमारा सनातन धर्म भक्ति है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, जिसका हम लोग भी प्रचार करें। South India is considered a stronghold of Mayavadis. But our Swami Maharaj, he went to South India also and he challenged these Mayavadis, and he established that mukti is not the goal of life, but according to the opinion of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, devotional service is the highest goal of life. इस तरह से बड़े वो तेजस्वी व्यक्ति और निर्भीक व्यक्ति थे। जब तक कि निर्भीक व्यक्ति नहीं होगा, निर्भीक सत्य का कभी वो प्रचार नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे ब्रह्मपाद जी निर्भीक थे, हमारे गुरु जी भी वैसे निर्भीक व्यक्ति थे, स्वामी जी भी ऐसे निर्भीक व्यक्ति थे। प्रभुपाद के करीब अधिकांश जितने भी शिष्य हैं वैसे तेजस्वी सभी लोग हैं। इसीलिए थोड़े दिनों में ही हमारे भारतवर्ष में जैसे प्रचार हुआ, स्वामी जी ने भी थोड़े दिनों में ही समस्त विश्व में
न जाने 140 या कितनी उन्होंने प्रचार केंद्र स्थापित करके और वहाँ के समय के प्रमुख समस्त भाषाओं में चैतन्य चरितामृत गीता का श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन तैयार करके विश्व के लिए दस्त करता और सर्वत्र उन्होंने प्रचार Swamiji was very powerful, adventurous and fearless. Unless one is fearless, he cannot preach the fearless message of the Lord. Our spiritual master, Yeshua Maharaj, lost of fearless. The disciples of Bhaktivedanta Saraswati Maharaj were fearless in supporting the mission of the Lord. So in that way, fearlessly he preached. Otherwise, how is it possible that within a short time he established more than 150 centers all over the world to and wrote Chaitanya Charitamrita in so many different languages. इस प्रसंग में मैं जब कह देना उचित समझता हूँ, उन्होंने कहीं लिखा है कि बॉम्बे मेरा ऑफिस है, हेड ऑफिस, मायापुर हमारे साधन स्थली है और ये वृंदावन हमारा परमात्मिक गृह है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि बॉम्बे से गीता का प्रचार करके विश्व में सर्वत्र ही गीता का प्रचार करें। ये फर्स्ट रूप ऑफ परमार्थ है, इसलिए इसका प्रचार किया समस्त देशों में, बॉम्बे से और उसका सेंटर रखा बॉम्बे। उसमें ये विचार होता है भक्त के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए ये आवश्यक है आत्मा और अनात्मा का ज्ञान। गीता में इसी चीज को दिया गया और विशेष करके शरणागति भक्ति का द्वार है। इसीलिए गीता को फर्स्ट बुक उन्होंने कहा था और सर्वत्र ही ऐसी बात है। बिना फाउंडेशन के, बिना गीता के हम भक्ति में एक ही चीज नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए बॉम्बे से में रह करके और या समस्त विश्व में उन्होंने गीता का विशेष रूप से प्रचार किया। पहले लोग गीता में सीखे, इसके बाद में भक्ति का के लिए पीछे प्रवेश करें। At that time, Srila Prabhupada, he heard that Prabhupada says that Bombay is my office, Mayapur is my place of worship, and Vrindavan is my home. So Bombay is the office, that is the perfect place for preaching. It's preaching headquarters. Therefore from Bombay he preached Bhagavad Gita and spread that message all over the world. Bhagavad Gita is the first book in Paramartha or spiritual life. It is the first book, and by getting entry into Bhagavad Gita, gradually one enters into the realm of devotional service. Bhagavad Gita explains the difference of spirit, soul and matter. Therefore it is the first book in spiritual life. कृष्ण ने अर्जुन को गीता कहा, अर्जुन ने कहा शिष्य मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो कुछ कहेंगे वही करूँगा, इसी का नाम शरणागति है। मैं विशेष करके इस कुंभ के डिपोटियों में मैं ये देखता हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि उन लोगों में एक स्पेशलिटी है कि वो लोग बड़े गुरुनिष्ठ हैं। गुरु के प्रत्येक बात के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देना उनके लिए सहज बात है और यही कारण है कि आज विश्व में सर्वत्र ये लोग प्रचार करने में सफल है। गुरु निष्ठा भक्ति की रीढ़ है और यही देखकर मुझे प्रसन्नता होती है कि आप लोग यहाँ सकते हैं। Beginning of Bhagavad Gita, Arjuna says to Krishna, I am your disciple, so certain to you. So that is the beginning of spiritual life. And I am very happy to see that in ISKCON devotees there is a great Guru Nishtha or faith in the spiritual master. And they are following very strictly the orders of their spiritual master. And that gives me great pleasure. Guru Nishtha is the beginning of all auspiciousness. And therefore this mission has become successful because of the Guru Nishtha of the disciples. चैतन्य चरितामृत उन्होंने ट्रांसलेशन किया। यदि किसी को साधन भजन करना है तो हमारे गोस्वामी पार्षद संदर्भ इत्यादि ग्रंथ इस सप्ताह कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमारे समस्त गोस्वामी ग्रंथों को लेकर चैतन्य चरितामृत की रचना की। उसमें साधन भजन के लिए राय रामानंद जी का संवाद,
सनातन गोस्वामी का संवाद, रूप गोस्वामी के साथ में महाप्रभु जी का संवाद और रथ यात्रा का प्रसंग, यूं तो सभी कुछ है, किंतु ये उसमें विशेष रूप से है। उन्होंने इन चीजों को जगत में प्रचार किया, साधन कैसे किया जाता है। इसलिए उन साधनों में नौथा भक्ति का प्राधान्य तो दिया और उसमें भी साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा बार, शिवोत्तर श्रद्धाय शिवम, सकल साधन श्रेष्ठ एक पंचंग, कृष्ण प्रेम जन्माय एक पाचन और प्रसंग। उन्होंने चैतन्य चरितामृत का ये सब करके उन्होंने देखा, प्रारंभ तो किया गीता से और जगत में नाम और वैदिक भक्ति के इन सब बातों का प्रचार किया, किंतु साधन का विषय क्या है, हमारे साधन का गोल क्या होना चाहिए, इस चीज को चैतन्य चरितामृत के माध्यम से उन्होंने दिखाया। यदि कोई अच्छी तरह से चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करे, किसी वैष्णव के साथ में आरंभ करे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में ही रागानु का भक्ति बड़ी भक्ति से और से रागानु का भक्ति में पहुंचेगा। क्योंकि उन्होंने कहा सकल साधन श्रेष्ठ एक पंचंग, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और शिव का, इसके द्वारा अवश्य वो कृष्ण प्रेम में पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने पहले तो ये प्रचार किया कि वो जानते थे अपने दूरदृष्टि से, ये लोग अच्छी तरह से वैष्णव के संग में जब किया और उसके अनुसार में साधन भजन किया, तो ये अवश्य एक दिन वहाँ तक पहुँच गए। Goswami literature, Sandarbhas, they are full of explanation about sadhana bhakti, devotional service by everyday principles. And Chaitanya Charitamrita, the instructions of Rupa Goswami, Sanatana Goswami, and Ayurveda Ramananda are also full of this explanation of devotional service by regular principles, how by 9 processes, and also within that kirtan or chanting is the main process. Then Chaitanya Charitamrita also mentioned that there are 5 main links of devotional service out of 64, which is association of devotees, studying Bhagavatam, living in Mathura Vrindavan, Bodhidham, and performing deity worship. So, chanting the holy name and performing deity worship, those are 5 main links of devotional service. Through these 5 links, gradually, one, by studying Chaitanya Charitamrita, in the association of a good devotee, a kind devotee, one can actually come to the platform Raganuga from the sadhana. The goal of life is actually developing love of God, and by studying Chaitanya Charitamrita and the association of good devotees, one can actually attain this goal of life. उन्होंने चैतन्य चरितामृत का इस प्यार का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। उसमें बताया कृष्ण हमारे प्रयोजन नहीं है, कृष्ण का प्रेम हमारे लिए प्रयोजन है। वो कृष्ण का प्रेम है क्या चीज, इस चीज को समझना चाहिए। भक्ति एक धारा है जो हमारे मानसरोवर से निकलती है और समुद्र में जाकर के मिलती है। उसी प्रकार से एक भक्ति की धारा है जो कि श्रद्धा से आरंभ किया उसका भी, और कहाँ तक पहुंचती है, श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम से स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, वहाँ भाव भक्ति है। जीव का अधिकार प्रेमा भक्ति में है। कैसा प्रेम, क्या चीज है प्रेम? ये 5 प्रकार के होते हैं, उन्होंने भी वर्णन किया है। शांत, दास, सत्य, बात, सजग। चैतन्य महाप्रभु किस चीज को देने के लिए आए? वो भी प्रेम देंगे। उसके पहले और सब चीजें दी गई थी, सब आचार्यों ने इसको स्वीकार किया और प्रचार किया, किंतु मधुर रस का जो चैतन्य महाप्रभु देने आए थे, आज से 1 कल्प पहले तक किसी ने नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु इसी के लिए आए थे और उनके जितने भी भक्त लोग हैं, उनके हरा परंपरा में वो सभी का मूल उद्देश्य था, वहीं तक सब लोग पूरी कर दिया। स्वामी जी का भी यही प्रकट था, यही का प्रयोजन था। किस प्रकार से हम आत्म करा करके और सबको उस प्रेम की धारा में लेकर के, और चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को देने के लिए आए थे, उस प्रेम को हम, इसलिए हमारे साधन भजन का सबका मूल तात्पर्य है वो प्रेम का। Goswami, they say that our ultimate goal of life is not Krishna,
but love of Krishna. Therefore, love of Krishna is like attainment of ocean, of the river, by a river. The river starts from Himalaya and then flows into the ocean gradually. Similarly, devotional service starts from platform of Shraddha and then Sadhu Sangha, Sadhu Asakti, then Bhav, then Mahabhav. Of course, the Jiva is entitled up to the platform of Prema Bhakti. So Prema Bhakti is the ultimate goal of life. Lord Chaitanya appeared to distribute this love of God. Before him, for one kalpa, nobody had distributed this love of God, which Chaitanya Mahaprabhu distributed. All the Goswamis also, the intention was to distribute love of God, and that was the vision of Swami Maharaj, to actually bring a devotee into this stream of love of God and make him attain the ultimate state of life. इसलिए मैं समझता हूँ कि स्वामी जी का उद्देश्य जगत में वही प्रेम देने का था जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर लोग षड गोस्वामी, उसके बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी तक जो आए थे वही प्रेम देने के लिए था। फिर उन्होंने बिगनिंग यहाँ तक आरंभ किया, जंगल काटते काटते सारा जीवन चला गया, उस चीज को अच्छी तरह से नहीं दे सके। इसीलिए किसी को उनके जीवन को इस तरह से कन्फाइंड नहीं बना देना चाहिए कि वैदिक भक्ति प्रचार करना ही और ये जगन्नाथ जी की पूजा करना ही, उनकी रथ यात्रा निकालना ही या और सब जो ये चीजें हैं, किसी को प्रचार करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, ये नहीं समझना चाहिए। बल्कि प्रेम को समझना चाहिए और उसको लाभ करने के लिए चेष्टा करना चाहिए और उसको लोगों में उत्साहित करने के लिए भी चेष्टा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनके जीवन का सबसे अंतिम कोई ध्येय रहा होगा, इस प्रेम को देने का ही उनका मूल उद्देश्य था, इसीलिए वो जगत में उस जगत से आए और यही उनका मिशन था। Like all the Goswamis, it was the mission of Swami Maharaj to actually distribute love of God. So therefore, one should not think simply by preaching or worshipping Jagannath or taking Jagannath Yatras, you can actually reach the goal of life. Actually, one has to come forward and make advancement and attain love of God in this life. That is the mission of all the Goswamis, that is the mission of Swami Maharaj, that is my firm opinion. वो इसके बाद अंत समय में खिला बन जाए, अपने घर में आए। उन्होंने श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन किया। 10वें स्कंद के मैं समझता हूँ कि 28वें अध्याय तक उन्होंने किया होगा। इसके बाद में प्रभु ने अपने पास में बुला लिया, राष्ट्रपति इत्यादि का या और सब चीजों का वो ट्रांसलेशन नहीं कर सके, किंतु हाँ मैं समझता हूँ कि इसलिए नहीं किया कि उनके सेवक लोग स्टेशन में योग्यता अर्जन करें और बाकी उनके अपने कामों को पूरा करेंगे और उनके लाइन में भजन करें, इसीलिए वो जानबूझ करके छोड़ करके चलेंगे या प्रभु ने उनके द्वारा नहीं कराया। तो मैं समझता हूँ कि पीछे से उनके जो शिष्य हैं वो लोगों ने आरंभ किया है और इस काम को पूरा करें। Srila Prabhupada translated 10 cantos of Bhagavatam up to the 9 cantos of Bhagavatam, part of 10 cantos, up to 28 chapters, and he did not finish the Rasa Lila and other intimate pastimes because he wanted his disciples to advance and to study and to finish these translations. So that is also one indication that he wanted disciples to advance and to understand this. Or else Krishna himself arranged it. So in this way, so the disciples may grow and advance in that way. मैं 1946 में गृहत्याग करके आया। 1946 में मैंने घर छोड़ा और अपने गुरु जी के चरणों में आया। मैंने उसी समय में अपने गुरु जी से स्वामी जी के संबंध में प्रशंसा पूजक बातें सुनी और मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक था। कुछ दिनों के बाद में कलकत्ते में हमसे भेंट हुई और पश्चात केशव जी गौड़ीय मठ में संन्यास के समय में मैं भी वहाँ था और उस समय संन्यास में मंत्री इत्यादि के संबंध में उनके संन्यास लेने के समय में जहाँ गुरु जी ने मुझे जो सेवा अर्पित की
मैं इसे ग्रहण करके मैंने उसको समय किया। पीछे से वो झांसी की आगे में प्रचार गए, फिर तब दिल्ली गए और दिल्ली से फिर अमेरिका में गए प्रचार करने के लिए। उन्होंने मुझसे बहुत सी सेवाएं मेरे ऊपर लागू की। उन्होंने उनकी जितनी भी पुस्तकें थी, उनकी वस्तुएं थी, करताल था, मृदंग और यहाँ तक कि पेड़ा मथुरा का पुस्तक था, मुझको वहाँ पर अमेरिका में भेजने के लिए उन्होंने मुझसे कहा। मैंने यथासाध्य चेष्टा करके नेविगेशन माध्यम से मैंने वहाँ पर किया। बहुत सी चिट्ठियाँ हमारे पास उनकी ये कैसे प्रचार करते हैं, बड़े उत्साह से लिखते थे। मैं भी यहाँ करता था और जहाँ तक हो सके मैंने सहायता की। पीछे से अंत में जब यहाँ वृंदावन में पधारे और अशुद्ध लीला अभिनय किया, उस समय मुझको बुलाया, मैं आया, उन्होंने कुछ सेवाएं हमको अर्पित की और मैं अपने को बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ कि उन्होंने अपना समझ करके अपना करके मेरे लिए सेवाएं की। उन्होंने कहा मेरी समाधि आप अपने हाथों से करेंगे। जगह भी निश्चित की गई थी उनके सामने। उन्होंने मुझको ये सेवा के लिए कहा और कहा कि हमारे बाद में जो हमारे क्रीड़ा उत्सव होगा उसमें आप आकर के इन लोगों को दिशा निर्देश करेंगे, किस रूप में होगी, ये सब बताया। और ये भी कहा कि यहाँ के जितने मंदिर हैं उसमें क्या क्या करना होगा हमारे जाने के बाद में, ये भी हमको उन्होंने आदेश दिए। और ये भी कहा उन सब के सामने जो प्राचीन हमारे स्वामी कमाल कृष्ण स्वामी थे, जगन्नाथ का समय थे, या और सब प्रधानमंत्री थे, भगवान दास के समय थे, हमारे विकास के समय थे, मैं समझता कि गोपाल कृष्ण जी थे, सब लोग के सामने उन्होंने कहा कुछ बातें कही। हमने कुछ अपने जीवन में अनुभव करता हूँ कि मैंने कुछ वैष्णव के चरणों में हमने कुछ अपराध किए, आप उसको क्षमा करेंगे और हमारे गुरु भाई जितने उनसे कहेंगे जरूर। मैंने कहा कि आप क्या अपराध करते हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया। मैंने कहा कि प्रचार में कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने शिष्यों को उनकी निष्ठा ठीक रखने के लिए हमने कहा, किंतु ये उचित नहीं था, तो भी मैं लिख दिया, इसलिए आप लोग क्षमा करें और हमारे भाइयों को कहते थे कि हमको क्षमा करें। मैंने कहा जैसे आपने क्या किया, उन्होंने कहा ये मैंने बातों बात में मैंने कह दिया कि गौड़िया मठ के लोग प्रचार नहीं करते, बैठ करके खाते हैं, आराम करते हैं। मैंने उनकी निष्ठा बढ़ाने के लिए, उनको प्रचार करने के लिए कहा। मैं जानता हूँ कि लोग कुछ बार शिखर महाराज थे, हमारे गुरु जी हैं, और सब लोग वन महाराज थे, उसके पहले सौफी महाराज थे, नेवी महाराज थे। ये बैठ करके रमते तो ये सब कैसे प्रचार होता है? प्रचार का तो उन्होंने सोया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, जिसकी एक लंबी विचार पाश्चात्य देशों में फल करके सर्वत्र ही अपनी छाया प्रदान करता। इसलिए भक्ति को छोड़ करके फिर भक्ति नहीं होता है प्रचार में। इसलिए मैंने की है आप उन लोगों से हमारे मैंने कहा जैसे आपने भक्ति के प्रचार के लिए इसलिए कहा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके गुरु भाई इसके लिए पिछड़े गए और मैं तो क्षमा आपको क्या करूँगा, आप तो हमारे शिक्षक हैं, इसलिए आप इसके लिए चिंता मत करें। In 1946, I came from home and I met my Guru Maharaj, Kishore Maharaj. At that time I heard just nice things about my Maharaj, from my Guru Maharaj. I was very eager to meet him. And I met him in Calcutta. And then he came to Kishore Gaudiya Math in Mathura. And we had very nice exchanges there. He took sannyas in Gaudiya Math. And at that time also I did the service of mantras and other processes, formalities. Then he went to Jhansi and other places in India, and then he went to America. From America, when he went, he wrote me letters, sent him everything, Madangas, Kalpa, even sweets from Mathura, Pera. And as much as I could, I sent
and I did some service at that time. Towards the end, when Prabhupada passed away in Vrindavan, he called me and he that during the course of my preaching, sometimes I have been harsh with my godbrothers and Gaudiya people. I may have said that in Gaudiya they don't preach properly and they actually eat and sleep. So I may have said all these things. So please forgive me and please ask my godbrothers to forgive. Actually, many of the godbrothers such as Sridhar Maharaj and Niri Maharaj and Bhakti Maharaj and Keshwar Maharaj, they also preached. They were the original teachers of Bhakti Maharaj, the chief Bhakti Maharaj, and now she has grown up and a big branch is spread all over the West and other countries. Everybody has been preaching, but to keep my devotee faith in this process, my disciples' faith, I may have sometimes harsh. My godbrothers, please forgive me and also tell them to give me forgiveness. So at that time I said that you are like my Shiksha Guru, how can I forgive you? You have not forgiven me, okay? And this way, very loving and touching exchange took place. मैं एक बार और का प्रचार वक्तव्य सुना पड़ेगा, मैं उसको बिना कहे रह नहीं सकता। वो ये बात की जब वो अमेरिका जाने पर थे, या वहाँ से आए हुए थे, तो हमको उन्होंने बुलाया था राधा दामोदर मंदिर। मैं वहाँ पर गया, देखा सचमुच में जैसे सनातन भजन करते थे। उनके पास एक दमड़ी की एक टूटी हुई कौड़ी नहीं थी, बिछाने के लिए उनके पास में कोई चादर नहीं थी, ओढ़ने के लिए कोई केवल 2-4 पुस्तकें उनका यही सर्वस्व था और माला लगे होता था। उस समय में वहाँ जाता तो अपनी चादर को वहाँ पर बिछा कर उस पर उसको कहते और मैं रोटी बनाता उसको सेकते या मैं सेकता वो, और इस तरह से रह करके सारी रात जग करके आरती इत्यादि ग्रंथों का अमूल्य ये सब ट्रांसलेशन किया गया। आज आप उसी का पता है कि आज किसी ने सरल से ये सब उन्होंने उनको अपनी सेवा में लगाया और हमको को सेवा दिया। इसके लिए मैं अपने को सब आप लोग से विशेष अनुरोध है कि उन्होंने प्रारंभ किया प्रचार इत्यादि का साधन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने सब कुछ जान ही लिया, बहुत अभी बिगिनिंग है। बहुत सी आदमी कहते हैं कि अभी बहुत कुछ जानने के लिए और भजन करने के लिए, अभी तो हम लोग काम छोड़ लोग मत यही नहीं छोड़ सके। इनको हटा करके बहुत हमको उदार चेता बनना पड़ेगा। जैसे उदार थे परस्पर में मित्रता को बदलाना चाहिए और उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको आप लोगों को या हम लोग कभी सीखती भी हैं। विशेष करके गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे सब गोस्वामी ने जो चीजें की हैं अंत में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने की है, उनको भी आप लोगों को अनुशीलन करना पड़ेगा, उस धारा के साथ मिलना पड़ेगा। आप लोग यदि अपने को गौड़िया मठ से अलग कर लें तो बहुत कुछ असुविधा होगी। हम लोग को गौड़िया समाज से अलग नहीं रहना है कि हम केवल इस कौम के हैं। हमने पहले सुना था तो कहते थे गौड़िया मठ से हमारा कोई संबंध नहीं, हम तो इस कौम हैं। ये बात ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग गौड़िया विचारधारा चैतन्य महाप्रभु का है, उनकी विचारधारा को लेकर के चलेंगे। उसी के लिए प्रचार करने के लिए वो गए और जीवन में अपने जीवन उन्होंने अपनाया। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी को और उसकी धारा को, इसको रूपांत कहते हैं, क्या गौड़ीय वैष्णव की विचारधारा है जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद तक चली आ रही है। उसको उसके साथ में मिलेंगे जुलेंगे, परस्पर नहीं मिलेंगे, उनसे कुछ गड़बड़ हो सकता है। हमारे एक गुरु वर्ग ने कहा था चाचा महाराज, यदि ये अलग अलग हो गए तो कहीं शादियां न हो जाए, इसलिए ये सब उनको भी देखना है।
और अच्छी तरह से उनकी धारा में रह करके आप लोग प्रचार कीजिए, ये बड़े आनंद की बात है। आज आप विश्व से संपर्क से आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोग उनके आचार विचार को और धारा को समझ करके अच्छी तरह से ग्रहण करने के लिए चेष्टा करेंगे। यही आप लोगों के उनके चरण में विशेष पुष्पांजलि होगी। यही बात है आप I can't help it. But that's one thing that when I used to visit Swami Maharaj in the temple, he was living in a very humble condition. And he didn't even have mat or bed to sit on. I would go and I would put my own chadar to sit on. He only had his green bag, books, which he would answer his hours to listen. And all night he was chanting the holy name of Krishna. And he was steadfast in his mission. So from that condition, he has established his wonderful mission, which we see all over the world. Of great austerity, he has established the state. So it is my humble wish that you people please do not be separatists. Do not think that ISKCON is separate from Gaudiya Math, that we are all belonging to the same family of Gaudiya mission, Gaudiya Vichar, Gaudiya philosophy, and we should all work jointly and should not become proud that we are better or we are different from the Gaudiya mission. And otherwise, one more brother remark, jokingly or sarcastically, that if these people remain too much aloof from Gaudiya Math, they may become Sajya. So, I'm just mentioning the remark. So please remain united as a Gaudiya family and to reach Krishna consciousness like this and follow the steps of Swami Maharaj. That would be very glorious. I offer my obeisances to all the Vaishnavas assembled here and Swami Maharaj, and thank you very much for the opportunity. Not merely repeating this story, he has got the knowledge. And so we read it out and out, but we must understand what is the concrete idea and the concrete result of all this level. This institution and its activity is far and wide, but finally, take up the supreme highway or national highway is Bhakti. Bhakti is the path. Another path is karma. Come to the world, you speak about jnana, you speak about karma, and you speak about karma. Many and less than people will be speaking about jnana and then bhakti, margam, very few. Because bhakti as it is. So what is bhakti? That is bhakti. What is student? They are money has no value. When it is money, it is and how to money? It is true that the
শ্যাম আর বৃন্দাবন ভেদে নবদ্বীপ নামে বাঁধিব কুটির ঘানি বৃন্দাবন ভেদে নবদ্বীপ ধামে বাঁধিব কুটির খানি বৃন্দাবন ভেদে নবদ্বীপ ধামে বাঁধিব কুটির খানি সচিরানন্দন চরণ আশ্রয় সচিরানন্দন মনোহর কি দেখিনু আমি বলিয়া মূর্ছিত হব মনোহর কি দেখিনু আমি বলিয়া মূর্ছিত হব প্রভু হে আহা মনোহর কি দেখিনু আমি বলিয়া মূর্ছিত बजावत भयो सामने मेरो श्याम देखो बजावत भयो सामने मेरो श्याम देखो बजावत भयो गाउने घन श्याम देखो बजावत भयो गाउने घन श्याम देखो ओ राधे तेरो श्याम को वरदान में देखो राधे तेरो श्याम को वरदान में देखो श्री राधे तेरो श्याम को वरदान में देखो देखो राधे तेरो श्याम को वरदान में देखो गिरवार उठावत भयो गाउने घन श्याम देखो गिरवार उठावत भयो गाउने घन श्याम देखो शिव जावत भयो गाउने मेरो श्याम देखो शिव जावत भयो गाउने मेरो श्याम देखो राधे तेरो श्याम परेशानी में देखो राधे तेरो श्याम परेशानी में देखो राधे तेरो श्याम परेशानी में देखो देखो राधे तेरो श्याम परेशानी में देखो होली मचावत भयो गाउने मेरो श्याम देखो होली मचावत भयो गाउने मेरो श्याम देखो अरे दंड भातरौल मैंने कृष्ण ने यहीं पर भात खाया था और द्विज पत्नियों ने मथुरा की ब्राह्मणों की पत्नियों ने यहीं पर कृष्ण को भात खिलाया था, इसलिए इसका नाम ही हो गया भातरौल। जहाँ हम गांव को पार करके आए उसी गांव का नाम भातरौल, और वहाँ जहाँ मंदिर जो दिख रहा है हम लोग देख करके आए उधर में, वो अक्रूर घाट कहलाता है। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले जब वृंदावन का भ्रमण करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ आए थे, तो वृंदावन में कोई घर नहीं था, जंगल था, और वहाँ पर कोई रात में नहीं रह सकता था। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी जो अक्रूर गांव वहीं पर था और वहीं पर घाट है, उसी जगह में गांव में रहते थे। उस समय पास में जमुना नदी बहती थी। अभी इसके नीचे ही जमुना जी को हम लोगों ने भी देखा है 50 वर्ष पहले। अब तो सड़क से यहाँ से करीब 1 माइल चली गई है उस तरफ में, अभी भी यहीं पर थी। तो वहाँ
अक्रूर घाट में चैतन्य महाप्रभु आए तो वहाँ रहते थे और दिन में सवेरे 6-7 बजे चले जाते थे वृंदावन में कि वहाँ पर इमली घाट पर, वहाँ पर जमुना नदी बहती थी। बहुत सुंदर वन था वहाँ। सेवा कुंज के अंतर्गत में वही रह करके भाव से विभोर होकर के भजन करते थे और 3-4 बजे वहाँ से लौट करके फिर अक्रूर घाट में कुछ माधुकरी करते और वहीं पर प्रसाद पा करके रहते भजन करते। इस तरह से कुछ दिन तक रहे थे। अक्रूर घाट मैंने जिस समय में कृष्ण और बलदेव जी नंदगांव में थे उस समय कंस ने अक्रूर जी को भेजा था, ये कृष्ण बलदेव जी को बुला लाओ, हमको उनसे अपने प्राणों का डर है। उसको ब्रज में कोई असुर जाकर के नहीं मार सकता, मैं भी नहीं मार सकता, इसलिए छल बल कल किसी प्रकार से तुम ले आओ। तुम्हारे ऊपर में विश्वास करते हैं, तुम कुछ भक्त है ना, किंतु तुम हमारा चाचा जी है, इसलिए तुम्हारे ऊपर में हमारा विश्वास है। तुम जैसे तैसे उन लोगों को यहाँ पर ले आओ और यहाँ आने पर हम उसको जैसे तैसे दे करके मरवा डालेंगे। ये कह करके नंदगांव में भेजा। अक्रूर जी नंदगांव से ला रहे थे। यहाँ जब लाए तो करीब करीब सूर्य अस्ताचल में था, शाम हो गई थी। यहीं पर रथ खड़ा कर दिया जहाँ हम लोग खड़े हैं, जमुना के किनारे, और यहीं पर एक ब्रह्म ह्रद था। ह्रद माने कहते हैं नदी से जुड़ा हुआ पानी का वह भाग जिसमें धारा तो नहीं है, प्रवाह नहीं है, किंतु नदी से जुड़ा हुआ है, अलग है। जैसे कालीय ह्रद या दह, ऐसे ये ब्रह्म दह या ब्रह्म ह्रद। इसमें पानी तो था किंतु जमुना से लगा हुआ था, उसमें प्रवाह नहीं था। तो यहीं पर उन्होंने देखा जब हम प्रवाह में नहीं स्नान करें, इसी ह्रद में स्नान करें। तो यहीं पर उन्होंने क्या किया, रथ को खड़ा कर दिया और कृष्ण बलदेव से आदेश लेकर के स्नान करने के लिए गए। जब स्नान करने गए तो डुबकी लगाई और ध्यान लगाया, डुबकी लगा करके वहां पर संध्या करने लगे, आंधी करने लगे। तो देखा जी कृष्ण बलदेव तो यहाँ पर हैं। उठ करके देखा जी कृष्ण बलदेव यहाँ पानी में कैसे आ गए। ऊपर में देखा तो वो रथ में बैठे हैं। अब फिर डुबकी लगाई, फिर जब देखा तो वहां अपने पास में देखा। तात्पर्य क्या? तात्पर्य यह, जब कृष्ण और बलदेव को ले आ रहे थे नंदगांव से, ब्रज से वृंदावन, वही वृंदावन से। अब ये सीमा का स्थान है। अब इस सीमा से वो मथुरा में नहीं जाएंगे कृष्ण बलदेव, वो वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। इसलिए छल कल बहना से वो वहां पर जब वो डुबकी लगाने गए तो जो नंद बाबा के जो पुत्र थे कृष्ण और रोहिणी नंदन जो राम थे, वो रथ से यहीं पर अंतर ध्यान होकर के चले आए, ब्रज में लौट गए। और उनके बदले में देवकी नंदन चतुर्भुज जो वासुदेव कृष्ण थे वो, और देवकी के पुत्र जो वसुदेव ये बलदेव जी, उस रथ में बैठ गए और उसी को लेकर के वहां पर लौटे। इसलिए उन लोगों ने, जो वासुदेव कृष्ण और बलदेव जी हैं, उन लोगों ने कंस को मारा वहां पर, और बाकी सब लीलाएं हुई। इसलिए अक्रूर घाट जहां पर कि उन्होंने दर्शन किए, उसी के पास में पीछे से एक नगर बस गया, वज्रनाथ जी ने बसाया, वो तो वहां पर मंदिर बनाया और वहां पर बसाया। और असल जो गांव था यहाँ का भातरौल, वो यहीं पर है। परंपरा से ये सब लोग चल रहे हैं। भातरौल ग्राम इसलिए है, अभी बतलाया, मथुरा के ब्राह्मण कंस के लिए, कंस के उत्थान और उन्नति के लिए वो लोग यज्ञ कर रहे थे इसी स्थल में, जहाँ पर कि अक्रूर घाट मंदिर है, उसी स्थल यज्ञ स्थली वहाँ थी। और उनकी पत्नियां इसी गांव में रहती थी, यहाँ जहाँ पर भातरौल और ये स्थान है। तब जिस समय में वो लोग यज्ञ कर रहे थे तो दोपहर में यज्ञ का कुछ विराम होता है। उस समय में ग्रंथ पाठ इत्यादि सब चलता है।
जो लोग खाना चाहते हैं उसमें भोजन करते हैं। तो जिस समय में कृष्ण यहीं पर गोचारण करते करते आए वृंदावन और मथुरा के बीच, उस समय में यहाँ पर बेर के पेड़ या फल फूलों के पेड़ यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर केवल अशोक के वृक्ष थे। अशोक माने छाया तो होगी, फल फूल उसमें होता नहीं, इसलिए उस दिन उनको कुछ को खाने के लिए नहीं मिला। वो चला गया था, खाने का जो सामान था मैया ने भेज दिया भांडीर बनने उधर में, और गैया चराते चराते भूल से वो इधर में चले आए। लीला कुछ करनी थी, अशोक वन में आए, इसका नाम था अशोक वन भी। तो यहाँ पर अशोक वन में आकर के बच्चों को बड़ी भूख लगी, दोपहर हो गई, दोपहर अब बीतने लग गई और भोजन यहाँ नहीं। तब उन्होंने कहा कि हमारे पेट में एक असुर घुस गया है, उसका नाम है भूख। सब असुरों से रक्षा करते हैं, तो इस असुर से भी रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा कि पास ही में यज्ञस्थली है, ब्राह्मणों से मांगो। तो वो बच्चे उनके कहने से ब्राह्मणों के लिए मांगने गए, किंतु उन्होंने हाँ नहीं कुछ भी नहीं कहा। तो बच्चे बड़े दुखी हुए, लौट आए, पर अब हम कहीं नहीं जाएंगे। कृष्ण ने कहा भाई एक दो जगह जाने पे मिलता है, एक जगह नहीं मिलता है। भिखारी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, भिक्षुक के लिए ये सब मान अपमान की बात नहीं है। तुम फिर से उनके घरों में जाओ, उनकी पत्नियों से मांग लो, वो बड़े प्रेम से दे दे। बहुत समझाने बुझाने पर वो लोग यहाँ आए और उनसे कुछ कहा कि कृष्ण बलदेव जी आए हैं, कुछ भोजन करना चाहते हैं, उनको भूख लगी है। अपने लिए नहीं कहा। गोपियों ने सुनकर, वहां ब्राह्मणियों ने सुन करके राशि की राशि उस समय में चावल, कड़ी, दाल, पूड़ी, कचौड़ी जो कुछ भी है, किंतु भात ही की प्रधानता। दिन में भात खाते हैं और रात में रोटी खाते हैं या पूड़ी कचौड़ी। उस समय में गर्मी का दिन होगा, बस सब लोगों ने मिलकर के थाल थाल भर में भात ले आए, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ भात। और तो उसके साथ में सब्जियां, अचार जैसा हो, दही, दुग्ध, ये सब तो था भी, पूरी कचौड़ी भी होगी, किंतु वो प्रधान नहीं। दिन में वो लोग सब ले आए, इसलिए भात से भात रोल हो गया। ले आकर के यहाँ पर पहुंची, कुछ जो थी ब्राह्मणियां, उनके पतियों ने झट आकर के रोक दिया। कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा जा, जब सब जा रही है वहीं पर मैं जा रही हूँ। तो कहाँ रही? तो कृष्ण बलदेव आए हैं उनको भोजन कराने के लिए। तो हम लोगों के लिए भोजन नहीं कराएगी, उन लोगों के लिए जाएगी। बस उनको पकड़ करके दो चार घात प्रघात देकर और घरों में बंद कर दिया, और वो विरह की अग्नि में अपने शरीर को जलाकर, और उनसे भी पहले वहां पर पहुंच गई, और ये सब भी पहुंच गई वहां। जाते ही कृष्ण को देख करके ठगी सी रह गई। उनका रूप कैसा था? श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रबाल नट वेशम अनुप्रतांसे विन्यस्त हस्त इतरेण धुनान अब्जम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्जहास्यम। मुखाब्जहास्यम, उनका मुख कमल स्मित हास्य से भरपूर था। गले में वैजयंती माला थी, हाथों में बांसुरी अधरों पर लटकी हुई, और उसमें अपना प्रेम प्रवाहित कर रहे हैं। देख भी रहे उनकी तरफ में। श्यामं हिरण्य परिधि, श्याम तो उनका रूप है, मन में, और उस पर बिजली जैसे पीतांबर कृष्ण का फार आ रहा है। मोर मुकुट यहाँ पर हो रहा है। बहुत सुंदर रूप दे करके वो आकर्षित हो गई। घर जाना नहीं चाहा। कृष्ण ने बहुत का समझा करके उनको घर भेज दिया। गोपियों को नहीं भेज सके, किंतु इनको भेजा। ये उनकी बातों को सुन करके घर में आई, बोली कि पति तुम्हारा स्वागत करेंगे, इसलिए तुम लोग जाओ, कोई चिंता की बात। उन्होंने कहा जब हम तो यहीं पर अपना हृदय रख दिया, बिना हृदय का हम जाएंगी तो वहां जाकर के भी क्या करेंगे और चल भी कैसे सकेंगे। किंतु कृष्ण ने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के लिए ब्राह्मणियों को उस रूप में ग्रहण नहीं किया, बल्कि भविष्य जन्मों के लिए उनको रखा। फिर तुम गोकुल में जन्म करके तब फिर हमारी रास और हमारी प्रिया के रूप में आ सकेगी। अभी आप लोग हमारे लिए आदरणीय हैं।
जिस प्रकार से लक्ष्मी जी को स्थान नहीं दिया, इनको भी नहीं, किंतु गोपियों के लिए नहीं। गोपियों ने कृष्ण को निरुत्तर कर दिया और उसमें कृष्ण को उनको रखना पड़ा और फिर वो उन्होंने राशि इत्यादि किया। तो यही स्थान है जहाँ पर कि गोपी उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण को अन्न इत्यादि खिलाया था, भात इत्यादि खिलाया था, कृष्ण ने उसे ग्रहण किया। ले तो आई थे थोड़ी और लाखों करोड़ों सखाए थे, खाने में कमी नहीं हुई, परिपूर्ण रहा। इसी तरह से थोड़ा भी कोई चीज भगवान के लिए लिया जाए, भगवान को अर्पित होने पर वो कमता नहीं। तो इस तरह से उनके पति ऐसे ही रह गए। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण कुल में जन्मे, हमारा दक्ष, सावित्र और शौक्र 3 प्रकार के जन्म हुए, तुम लोगों का कोई जन्म नहीं, सब समय अपवित्र रहने वाली हो, किंतु तो फिर भी तुमको उन्होंने दर्शन कर करके अंगीकार कर लिया और हमें अंगीकार नहीं किया। हम तो उनका दर्शन करने के लिए कंस के दर से नहीं जा सकते हैं, आप तुमने किसी की परवाह नहीं कर वहां पर उपस्थित हो गए, इसलिए तुम लोग धन्य हो। ये कहकर उनके चरणों में गिर गए, क्षमा मांगा कृष्ण को। बल्कि ये द्विज पत्नियां भक्ति के कारण में अत्यंत प्यारी है। उधर में काली भी ऐसे था, पुरुष कृष्ण का विरोधी, और उनकी पत्नियां थी नागकन्या, बड़ी भक्त थी। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर द्विज पत्नियों के ऊपर में कृपा की। वो स्थान है, यहीं पर अक्रूर जी को दर्शन मिला था। और यहाँ पर एक और बात हुई, जब नंद बाबा को भय गांव में उनके पानी के अधिष्ठात्री वरुण देव जब पकड़ करके ले गए, तो वहां पर नंद बाबा ने देखा कि कुबेर अपने परिकरों के सहित में इनकी परिक्रमा कर रहा है, नाना प्रकार के रत्न आभूषण उपहार में दे रहा है, इनका बड़ा सत्कार कर रहा है। ये तो साधारण नहीं है। यहाँ से लौट करके ब्रजवासियों को बतलाया, तो ब्रजवासियों ने कहा कि हम भी आपका वो परम ब्रह्म धाम देखना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन देखना चाहते हैं, गोलोक। तो उनके कहने से कृष्ण ने उनको इसी स्थान पर लाए और उसी अक्रूर घाट पर, अक्रूर नहीं ब्रह्मरथ में यहाँ पर जो था, उसमें उन्होंने कहा जा स्नान करो। और स्नान करने के लिए जब ही डुबकी लगाई, देखा गोलोक वैकुंठ धाम को उन्होंने दर्शन किया देख करके। और वहां पर उनका देखा ऐश्वर्य, उन्होंने आंख बंद कर दिए, बोले जब जल्दी से हमको वहां से ले चलो, हम ब्रज में ही हम अच्छे हैं, हमको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। वहां पर कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहना पड़ेगा और ऐश्वर्य नाना प्रकार की। इसलिए उससे वो घबरा गए और जल्दी से आंख खुला तो देखा ये फिर ब्रज में आ गए। कहे हमको अब ब्रह्मलोक की, अब ब्रह्मधाम को दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ब्रज में तुम हमारा पुत्र, मैं तुम्हारा पिता, हम तुम्हारे सब सखा हैं, इसलिए कभी हम लोग वो दर्शन नहीं करना चाहते हैं, हम ब्रज में ही रहना चाहते हैं। ये 3 घटनाएं यहाँ पर हुई और चैतन्य महाप्रभु यहीं पर पधारे थे। ये सब का स्थान है। अभी अंग्रेजी में थोड़ा सा संक्षेप में नवीन जी बतला देते हैं, ये सुन लेंगे, तब फिर हम लोग धीरे धीरे यहाँ से उस स्थान के लिए अभी प्रणाम करेंगे, अक्रूर घाट के लिए। वहाँ का रास्ता भी ठीक नहीं है और जाने में भी 1 माइल 1.5 माइल लग जाएगा आने में, इसलिए हम लोग प्रणाम करके बस पे बैठ करके बिता वो कहाँ है का लड़का ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। So today we have gathered here. This is the place actually where this Akrur he came here, and Maharaj explained about 3 stories. The first story, that Akrur came here along with his chariot, and he stopped his chariot over here and he went to take bath. What is Brahmarath. So it is the place actually where water actually, it is not the
तुम 5 बार নিয়েছো না আমি একবার পাই নাই আমার হাত ধরিয়ে তোমার কালো হাত আগে দেখেছি এই নিতাই নিয়ে যাবেন নিতাই নিয়েছে ও হাতটা কালো আবার নিল নিতাই हैं? अरे वो तो भूल गया तुम्हें कहाँ मैं तो जैसे बोले अरे कि हाथ तो नहीं लिखा नहीं लिखा और कहा कि तुम मथुरा जाना, अरे दरकार नहीं, मथुरा जाना और कृष्ण को देख करके आना और हमारा एक संदेश उनको दे देना। जो श्रीमती जी तुम्हारे विरह में तुम्हारे जाते जाते फिर बचेंगे कि नहीं कोई ठीक नहीं, ये जाकर के उनसे कहा ना। तो हंस ने पूछा कि मैं कौन रास्ते से जाऊं, तो उन्होंने रास्ता बतलाया उसको, नंदगांव से रास्ता बतलाया और मथुरा का। तो उसमें बतलाया है कि कौन कौन स्थान आए। नंदगांव से जब चला तो चरण पहाड़ी आएगी जो नंदगांव के पास में है, और उसी से ऊंचा गांव होता हुआ फिर जमुना के किनारे चलते 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 इस स्थान पाया, ये भातरौल में। तो उसका वर्णन किया, जाएगा देखेगा तो छठी करा में बछड़े उछल रहे होंगे, बड़ी बड़ी स्तन वाली गायें वहाँ पर होंगी जो अपने दूध के भार से चल नहीं पा रही होगी, और बछड़े कैसे होंगे, हंस के समान। और गोप लोग कोई चिंता परवाह नहीं, किंतु कृष्ण के विरह में कभी दुखी देखेगा। गोपियां जो बड़ी सुंदरी थीं वो आजकल न जाने कैसी हो गई हैं। तो ये सब चीज़ों को दर्शन करते हुए फिर मथुरा में जाना और कृष्ण से हमारा संदेश कह करके लौट आना। हमारे रूप गोस्वामी ने हंस दूत में ये इसका वर्णन किया है। पीछे इसके संबंध में हम लोग आगे वर्णन करेंगे और वर्णन करेंगे, अभी यही पर समाप्त। अब आप लोग बस में चलिए। Brahmins, these ladies. And secondly,